Karamveer, I've just been saying that some of our Karamveers have been just unbelievable examples, and they've been very moving for me particularly, because I've lived with a lot of them and their stories. Um, we've had women who've been attacked, had acid attacks, and have still continued to come here and narrate their lives. It's not easy for a woman to do that. We've had people whose sons and whose children have thrown them out of the home, and this gentleman has gone and picked them up and given them some kind of respect. It's unbelievable to know that in today's world there are children that are able to do this, and yet how wonderful that there are some people out there who are caring and look after them. We've had some great award winners, international award winners who worked for, children and protecting children from child labor. We've had people who have worked in the city like Banaras and helped young girls from prostitution. All these stories are just so emotional and so motivating that I must admit that every time I go back at night after finishing this, it remains with you for a very long time. And many a times I find it reflected in some of the things that I do, or I hope that many do. There are many people that actually watch one of our shows and get so impressed that they write in and they actually seek to know, whether they can be of some assistance, they can help. And that's just wonderful as a show, and it's wonderful as a channel for them to think that we should have elements like this in our shows so that it motivates a lot of the people. It's not just one or two people. It's when a lot of people in the country step out and want to help. It makes a lot of difference. It's like if there's a crisis. We've had martyrs. We've had farmer situations who are committing suicide. We've had floods and devastation in Kerala and Maharashtra and Odisha and Bengal and Bihar. And it's just wonderful that when one person makes an initiative, that a lot of people just want to copy him and want to join in together to see whatever they can do. Yes, the government does a lot, but it's just wonderful to see a collective effort coming in. And that's what I find when I play Karan, that I find a lot of people collectively. I had somebody from America who's on my fan mail. When they saw the farmer issue or the girl child issue, actually write in and say, how can I make a contribution? I don't earn much, but can I just give $500? I mean, it's just that little motivation and that initiative that comes from these people that shows that something is going inside their hearts and minds for them to be able to do something like this. So that's what's really very interesting to me and motivating for me. And sir, at 76, where do you find the passion and energy to work so hard? Sorry? At 76, where do you find the passion and energy to still work so hard? I got to do a job. It's another job. You stop getting a job these days, Yes, sir. Check. Amitabh sir, इधर. Yes. सर नमस्कार. Oh yeah, sorry. नमस्कार. मेरा नाम अंकिता तिवारी है. मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हूँ मेरे करियर में. तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि ये सीजन भी ऑफ कोर्स आप ही ने होस्ट किया है. सर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार की जो टैग लाइन है वो है डटे रहो. तो अड़े रहो. तो कहीं ना कहीं आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं अड़े रहने का, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव में भी आप डटे रहे, आप अड़े रहे. क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, इस बार की टैगलाइन के बारे में? ये तो इन्होंने टैगलाइन बनाया है, इनसे पूछिए. मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है. मुझे काम मिलता रहता है, मैं करता रहता हूँ. मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में अड़ा रहा हूँ. और जब तक ये जीवन है तब तक तो संघर्ष बना रहेगा और अड़े रहेंगे हम, और क्या. सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी. केबीसी के 19 साल कंप्लीट हो गए हैं और आप जो हैं वो लगभग हर सीजन में ही जुड़े रहे हैं.
एक लंबी जर्नी है आपकी साथ में। आप एज अ पर्सन कितने इवॉल्व हुए हैं इन 19 सालों में केबीसी के साथ? अपने बारे में बोलना बड़ा कठिन होगा। जैसा ये लोग कहते हैं करने को, वो मैं करने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये तो किसी और से पूछना होगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि अगले साल हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं। सर इस बार का म्यूजिक भी थोड़ा अलग है। अजय अतुल ने जो है वो एक और म्यूजिक जो है कंपोज किया है, किस तरीके का आपका उस पर विचार है? या कैसा लगा? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, बट अजय अतुल जी बहुत ही प्रख्यात संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इस बार ये काम उनको दिया गया और उन्होंने मैसेडोनियन फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के सहयोग से जो हमारी सिग्नेचर ट्यून है उसे बनाया है। बहुत ही भारी भरकम लगती है और सुनने में अच्छा लगता है, आपने सुना होगा। सर आपसे एक सवाल है, मेरा नाम दिलीप ठाकुर है। आप में कितना बदलाव आ गया? सर ये दाढ़ी बढ़ गई है, थोड़ी उम्र बढ़ गई वो है, बात अलग है, वजन बढ़ गया है। हाँ जी, ये ऐसे प्रोग्राम की वजह से आप में कितना बदलाव आ गया? सवाल जवाब, सवाल आते हैं, सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, नए नए लोग सामने या आ रहे हैं। मेरी भी उसमें जिज्ञासा बढ़ती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, वो जब प्रश्न आता है तो हमें पता चलता है। और फिर कभी समाज में बैठते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, तो उनके साथ हम बोलते हैं कि तुमको पता है कुछ ऐसा होता है, तो वो कहते हैं नहीं पता। तो मुझे पता हूँ, मैं बताता हूँ। तो हमारी जो है जिज्ञासा बढ़ जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, तो हम लोग अपने आप को बहुत 30 मार खां समझने लगते हैं। अच्छा, 7 नवंबर 1969 को आपकी सात हिंदुस्तान में रिलीज हुई। है जी, 7 नवंबर 1969 आपकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तान में रिलीज हुई। अभी 50 साल होंगे 7 नवंबर को। क्या इस प्रोग्राम में आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे या और कुछ सोचा है? सर 50 साल तो हो रहे हैं। मैं ये सब उत्सव वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ। अच्छा, सोनी के लिए सवाल है, आप सोशल हेल्प करते रहते इस प्रोग्राम के लिए। अभी महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है उसके लिए कुछ सोचा है आपने, कुछ हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ आने से पहले मैं अपनी टीम के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा था कि हम क्या कर सकते हैं महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है। और महाराष्ट्र में ही नहीं, बस कर्नाटका में भी बहुत बाढ़ है और केरला में भी है। तो किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं, काफ़ी काम उसके ऊपर हो रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप हमारे नेटवर्क पे भी देखेंगे हम क्या काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने दर्शकों को भी इंगेज करें और इन्वॉल्व करें इस मदद में। इसलिए हम अपना नेटवर्क भी यूज़ करेंगे to make an appeal to our youth to also come forward and help. हम अपनी तरफ से और हमारे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन सबको इन्वॉल्व करके हम काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Hi sir, this is Kiran from Banega sir. मेरा सवाल amitabh sir से। सर अगर सर ये ओह या सर, सर अगर इस खेल का To me? मौका for you, Yeah. yes. अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को मौका मिले हॉट सीट पे बैठने के लिए, तो क्या लगता है कौन सबसे आगे तक जाएगा? कौन है जो बहुत सारे सवाल या बहुत क्यूरियोसिटी रहते हैं जिनमें ये सब सवाल के जवाब देने के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन आगे तक जाएगा आपकी फैमिली मेंबर्स? जी मेरे परिवार में सब लोग देखते हैं कार्यक्रम, जया देखती हैं और वो कुछ भी हो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो देखती हैं। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको यहाँ पब्लिकली। और घर वाले जो हैं वो खेलते हैं इसको, कभी श्वेता खेलती है, कभी ऐश्वर्या खेलती हैं, और घर में बैठे बैठे कभी प्रश्नावली होती रहती है तो सब उसका जवाब देते हैं। तो अगर उनको आना हो तो जो खेल के नियम हैं और सोनी चैनल के नियम हैं उसमें परिवार का कोई सदस्य आ नहीं सकता है यहाँ। तो नियमों का पालन करते हुए हमने उनको अलग रखा हुआ। हाँ जी, आराध्या जी हाँ देखती हैं। अब ये तो वो स्वयं ही बताएंगे, अभी वो है नहीं यहाँ पर, क्या किया जाए। हाँ जी, यस यस बात करती हैं वो जी। नहीं वो देखती हैं, इश्तिहार वगैरह देखती हैं सड़कों पर। हमारा जब इश्तिहार आता है चैनल पे तो उसको देखती हैं
और बात करते हैं हमसे। एक आध बार हमने ऐसे घर में बैठे बैठे कभी ऐसे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ इसका जवाब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बस इतना ही तक रहता है। एक घरेलू मामला है, इसमें क्या है। हेलो हेलो सर, ये सर ये हेलो सर, कल्पेश फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। लास्ट पूरे हफ्ते से महाराष्ट्र में बाढ़ आया था, उसके ऊपर कोई भी बॉलीवुड कलाकार और कोई भी सर्च व्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? सर, ऐसा सोचना गलत है। बहुत से लोग चैरिटेबल काम करते हैं, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं और ना ही मीडिया को बोलते हैं। उनमें से एक आपके सामने है जो आपसे बात कर रहा है, और मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमने इतना किया यहाँ पर, हमने इतना किया यहाँ पर। लेकिन जो लोग हैं जो इस संबंध में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। क्या आप सब वोटर्स को अपील करोगे, शख्स को अपील करोगे, व्यूवर्स को? हाँ जी, सब अपील करोगे व्यूवर्स को आप? जी अवश्य। बल्कि यहाँ आने से पहले अभी मुख्यमंत्री के दफ्तर से मैं बात कर रहा था। मैं उनसे जानना चाह रहा था कि कोई अगर हम अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कुछ बात बोल सकें कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, वहाँ पर आप योगदान कर सकते हैं। Good afternoon, Amitabh sir, to your right. Sir, Swarupa here from Latest Team. My question to you is your next role, Vijay Kaise, that is a very inspiring story. Also, Anand Kumar's Super 30 based story also came from KBC. So, is your aim that in the future you present more such motivating stories to the world and also to Bollywood? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने कहा, नौकरी मिल जाती है तो हम खुश होते हैं। वो कहानी लेके आ गया कि ऐसी कहानी बनानी, हमने कहा ठीक है। Sir, this is Dharani from Television. Sir, if you are made to sit the other side of the chair, who do you think will make for a perfect host? ये तो सोनी डिसाइड करेंगे। मैं तो बहुत घबराता हूँ इधर बैठने, क्योंकि मैं एक आध बार ऐसे ही ट्रायल के लिए बैठा, एक आध ही क्वेश्चन का उत्तर दे सका। हमारी जनरल नॉलेज बहुत ख़राब है। But anyone that comes in your mind, sir? कोई भी आ जाए, जो भी कहेंगे। मेरे दिमाग में एक आते हैं, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन। And also I wanted to know that, and this is that can we see the new season of Junior KBC that used to air way back? The kids show has always been famous and has been viewed a lot. So that's why I wanted to ask, any plan to bring back with new season? पिछले साल हमने एक वीक एज अ स्पेशल किया था। कौन बनेगा करोड़पति, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि साल में एक पर्टिकुलर 2 महीनों के लिए 12-13 हफ्तों के लिए आता है। तो उस दौरान अभी इमीडिएटली ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हम करेंगे, क्यों नहीं। हम बच्चों का सिंगिंग और डांसिंग शो चलाते हैं, तो कौन बनेगा करोड़पति बच्चों का हो सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ Thank you. क्या सर, ये हमने जानबूझ के नहीं किया। It was just a mere coincidence. Star came about with this idea. Circumstances were such that everyone felt that I should not go there, especially people from my home. But I just felt that it was something new. The people that were responsible for the show were very insistent. I didn't know what I was getting into. I asked them, can I see the show? They showed me some tapes. Then I said, can I go and see how it's conducted? So we went to England and we actually saw the host there conduct the show. And then I said, if you can give me the same atmosphere that I've just seen in England, then I'd like to do it. And to give credit to them and to Sony thereafter, every time there has been a replication, and indeed a better replication of what I saw in England many, many years ago. And each year there are new innovations that Sony keeps putting in to, make the set look better, create atmosphere which is conducive to the audience as well as to the host and to the contestant.
That requires a lot of labor, a lot of thinking. And I really must congratulate Sony for every year coming up with new thoughts, new ideas. What can we do to make the set look better? What can we do to make the contestants more comfortable? How can we improve the routine of the show? Most of the guidelines that you know the show has, we can't change that as per law, but we do innovate. And one of the things that I was listening on, and I want to just, is the flip the question. In the flip the question, it's been there before. So when you don't like a question, you can take that lifeline and you'll get a fresh one. But the novelty this year is that there are about 11 subjects from which you can choose a question. So it could be entertainment, sports, literature, religion. There are about 11 कम से कम आम जो विषय हैं उनकी एक सूची बनी हुई है. And before the contestant comes onto the hot seat, he is given an opportunity to choose, were he to get the flip the question lifeline, which issue would he choose, or which subject would he choose? And that is known to us before he comes to the show. And when we deploy the flip the question, the 11 list comes up, and he chooses, I would like my flip the question to be, say, religion, or say sports. And the computer then designs the question according to his wish. And he gets a question on sports, or he gets a question on religion. That is the novelty, I feel, which has been very conducive. It's actually contestant friendly, because we're actually wanting to help him. If he's used a lifeline, and the lifeline is there to provide life for him. And this flip the question is one of the good novelties that we're introducing in this show. So there are about 11 issues and 11 subjects in our lives, and he chooses a subject before coming onto the show, and when he uses the flip the question, he picks that one subject, and on that subject, the fresh lifeline comes, the fresh question. We have a lady here. So could we please give her an opportunity? Sir? Thank you. सर मैं सोनल भारद्वाज कौशल छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ सर, मैं हरिभूमि पेपर से. सर आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जन्मदिन आता है 11 अक्टूबर को सर. हम अपने जन्मदिन की तारीख से उस नंबर को लकी माने लगते हैं. आमतौर पर हमारे भारतीय जो लोग हैं ऐसा मानते हैं. यह आपका 11वां सीजन है सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ मैं सोनी सीजन के लिए भी पूछूंगी कि वो इसको कैसा देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण. लेकिन सर पहले आप कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं नंबर जो है उसे जोड़ता है. इसकी सफलता से आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें क्या बोलूं, 11 तारीख को मेरा जन्म हुआ, और क्या बोलूं? सर ये 11वां सीजन है आपका. हाँ जी, ये 11वां अच्छा 11वां सीजन है, इसलिए 11 अक्टूबर. मैं उसे ऐसे जोड़ रही हूँ. देवी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना ध्यान मैंने दिया नहीं. अब आप बता रहे हैं तो अभी सोचूंगा मैं इसके बारे में. हाँ तो अरे कहाँ वो क्यों बगी है, एकदम छुटकू सा है. किधर है भाई, बुलाओ उसको. ये आ गया. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. यहाँ खड़े हो जाओ. इधर इधर इधर. वहाँ कहाँ देख रहे हो? आज मालिक हम है, इधर मालिक नहीं. क्या हाल है भाई साहब, सब ठीक ठाक है? यार बहुत से मीडिया लोग आए हैं. हाँ उधर जाओ, उनके पास देखो बहुत सारे खूबसूरत देवियाँ बैठी. इधर उधर उधर, अरे उधर यार, वहाँ जाओ, उनको हेलो बोलो सबको. हेलो बोल रहा है. और इधर भी बहुत से लोग हैं बैठे हुए. हाँ इधर जाओ. बहुत आदर सम्मान करता है हमारा. सर नमस्ते कर दीजिए उसको, बेचारा सबसे अपना सर हिला रहा है. आ जाओ, वापस आ जाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू क्यू बगी, थैंक यू वेरी मच. अब आप जा सकते हैं, जाइए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हाँ सर ये घूमता है चारों तरफ. तो मान लीजिए अगर हमने प्रश्न पूछा और वो 10वें प्रश्न के बाद है, जबकि समय की कोई पाबंदी नहीं होती, तो कंटेस्टेंट जो है वो सोचता है, उसको समय मिलता है, तो ये घूमता रहता है. तो ऐसा लगता है कि ये जो कैमरा है ये कंटेस्टेंट की सोच है. तो
उसकी सोच विचार है, वो जाएगा, घूमेगा और जा करके कभी सामने आ जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा, ऐसा काम करता है। कैमरा के ऊपर ये जब टीवी पे देखेंगे, मैंने अभी देखा नहीं कैसा लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगेगा। या अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हर साल कुछ नया लेकर के आता है चैनल, वो आपको होस्ट करने में भी हेल्प करती है? ये इनकी फैमिली की वजह से आपकी होस्टिंग में भी कुछ ऐड ऑन होगा, कुछ आपको हेल्प मिलती है क्या? नहीं, हमको कोई सहायता नहीं मिलती। हमको ये लोग बैठा देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं तो कहने रुक जाइए, आपने गलत बोला है, यहाँ लाइट ऐसे आनी चाहिए, कैमरा ऐसे चलना चाहिए। पर ये यूनिट इतना अच्छा है और मज़ा हुआ यूनिट है। तो एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ हमारे जो केबीसी का पूरी टीम है, 200-250 लोग काम करते हैं और उन सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनका अगर सहयोग न मिले तो ये शो नहीं चल सकता। उनकी ना आप शक्ल देखते हैं, ना आप सूरत देखते हैं, ना उनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन विदाउट देम दिस शो इज़ नथिंग एंड दे वर्क सो हार्ड and make sure that every little detail, it's a tough game, I tell you. Electronically, mechanically, it's a very, very tough game. We have 10 contestants, they have separate video screens, how the question will come on, what is the timing of this, how the lights will come on. It's a nightmare. But you know, they are so good and so efficient. I really want to thank them. Thank you so much. I have a question here. Purely right. ये यहाँ पर हमारी वो जो हमारे कपड़े पहनाती है ना, ये वो हैं प्रिया। प्रिया just stand up and come here. She is the designer. She's the designer and she's been designing all the clothes. So maybe Priya, you can tell them something about. You have a mic? The socks are Sir's style element that he brings every year. Like last year we have got brooches and. पूरे शरीर में आपको हमारा सिर्फ मोजा दिख रहा है। Last year Sir had introduced those brooches on tiles and they became very famous. In the first week, the promo aired, all the stores were carrying it. This year we are carrying forth the 3-piece suits and the bangalas from last season that did very well. And so this year we're going to experiment a little bit the way we tie the knots, the ties, Eldridge knot and Trinity knot, and there are different knots, scale knots, and it's only Sir that makes all the designs look so good. And I want to thank him for the opportunity because had he not given me the opportunity, I was styling for 7 years, but I wasn't designing for him, and it's Sir that gave me the opportunity to design for him since last year. So thank you very much. मैडम, ये पीला मोजा मैं घर से लाया हूँ अपने आप। गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। पहने वाला था काला, लेकिन मिला नहीं तो पीला पहन। सुंदर लग रहा है, बस हो गया। किसको? हाँ सर, ये तो आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसे बोल दिया है, लेकिन इसके पीछे 4-5 लोग काम करते हैं। वो बटन दबाती इधर उधर घूमता है। मैंने कुछ There's a question here on the right. Yeah. You know, after end of every episode, we see you going to the audience and meeting them, which is perhaps your endeavor. You know, it's something which is just your wish. You're always mindful of the fact that a lot of audience have perhaps come to meet you, you know, and not just watch the show. And also, you've always been a tech enthusiast. You know, you've numbered your tweets which no one else does. So, you know, more technological perhaps ideas coming from you for the show. No, it's just that I feel that, you know, the audience is brought in here for a morning show at about 7-8 o'clock in the morning. And then they're collected, they're given breakfast, and they're brought in here. Then there's a whole time spent in briefing them and how and what they should do, how they should behave. Can't talk, can't get up, can't do this thing. And for about 4 or 5 hours, they just keep sitting there, you know, with such a lot of discipline. So I just feel the least that I can do at the end of the show is to, you know, just go up and
and do a photograph with them or shake hands with them. They are truly, as I said earlier on, they are the ones that I'm really scared of. It's fearful to be in front of a live audience. And but when they scream and shout and when they applause, that's what gets us going. And that's an element that actually is like a gauge to know how the show is going. And therefore, I just admire them. And they all come voluntarily. And a lot of them bring little gifts and things. And it's really wonderful. And as far as numbering is concerned, it's just a fad, just to know. In case I want to recollect, then I can recollect by the number. So I know which number I said what. And I'll just be able to trace it. मेरा प्रश्न इधर ये है कि इन केबीसी में रिश्ते बहुत सारे बनते हैं, जो बिगड़े हुए रिश्ते भी बनते हैं। तो ये शो एक रिश्तों को बनाती है और रियल लाइफ में भी रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लोग आजकल मायने बहुत कम समझते हैं। आपके हिसाब से रिश्ते हर इंसान के लाइफ में कितना ज़रूरी है और इंसान को तरोताज़ा कैसे ये रिश्ते ही रखते हैं? जी, बहुत बार जो हमारा जो कर्मवीर कार्यक्रम होता है उसमें इसी की चर्चा होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी कर्मवीर आते हैं उनका कहीं ना कहीं ये जो आपने सवाल उठाया है रिश्तों से ही संबंध होता है। चाहे वो किसी गरीब के लिए काम करना चाहे हों, चाहे वो ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए जिनके साथ कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका एक वो परिवार मान लेते हैं उसको, ये हमारा परिवार है। पिछले सीज़न में आपने देखा होगा कि एक जो महिला थी जो कि कलकत्ते की सड़कों पे जो लोग पड़े रहते हैं, जिनको लगता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको उसने जा कर के ऐसे एक दिन बिस्किट रख दिया, एक दिन पानी पीने का रख दिया। उससे पता चला उसको कि ये जो है ये इनकी मानसिक हालत ठीक है। फिर उनको वो उठा के ले गए, अपने घर में शरण दिया, छक दिया, खाना पीना उनकी देख रेख की। ऐसे ही उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक शख्स था जो पड़ा रहता था और उसको कुछ नहीं करता था, कुछ याद नहीं था सिवाय एक कि उसको दिन में एक बार चाय पीनी है। तो वो एक चाय की दुकान में जाता था कलकत्ते की गलियों में और वो चाय पीता था वहाँ और चला आता था। रोज़ रोज़ ये करता था। तो जो चाय वाला था उसने एक दिन उससे पूछा, ये तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। तो उसने कहा कि अच्छा, वो मुसलमान था। उसने कहा आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद। तो ठीक है, चला गया। अगले दिन आया, कैसे हो मोहम्मद? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देवी जी, जब वो महिला यहाँ पर कर्मवीर के कार्यक्रम में आई, वो मोहम्मद यहाँ आया था, ऑडियंस में बैठा था, और जिस वक्त हमने कहा कि ये हैं वो, तो महिला जो कर्मवीर की थी उन्होंने कहा जब ये थोड़ा सी इसकी मानसिक हालत ठीक हो गई तो हमने पता किया इसका असली नाम है संतोष। तो मैंने उससे कहा अरे भाई संतोष आओ, तुमसे हम मिलना चाहते हैं। आपको मालूम है उसने क्या जवाब दिया? मेरा नाम संतोष नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद है, क्योंकि मोहम्मद नाम से इस महिला ने उसकी देख रेख की, तो अब वो मोहम्मद है। So this is the kind of effect that these people have. They formed an association. It becomes a family. They understand this, that this person is looking after me, therefore they are my family. That's the association. ऐसे बहुत से किस्से होते हैं. Lot of young people who have thrown their parents out of the house. Those parents have come and sat here. And when I ask them, where is your son? Where is your home? This person is my son. That Karamveer jo humne bulaya. These are the bondings that happen in these shows. And you don't get to hear them, you don't get to see them. And it's so wonderful that we are able to do that. अमित जी Yeah, for you. थोड़ी देर पहले हम कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे थे कि कैसे वो शो को डिश बनाते, कैसे सब बोले कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो जो कंटेस्टेंट आते हैं शो पे, वो यूजुअली हम देखते हैं कि पीछे बहुत खूबसूरत सी ऐसा स्ट्रगल या उनकी ऐसी बैक स्टोरी ज़रूर होती है। तो मतलब जैसे शो है इसमें जो आप चूज़ करते हैं तो उसमें सवाल जवाब होते हैं, जो सही सवाल जवाब देते हैं उन्हें चूज़ किया जाता है। तो मतलब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है यूजुअली क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो एक स्ट्रगल या इमोशन, क्या ये मतलब शो अच्छा हो इस वजह से होता है? किस तरीके से सिलेक्शन में नहीं लगता? जैसे आपका थीम में अड़े रहो इस बात का, तो शायद वो कंटेस्टेंट वैसे होने चाहिए जो इस थीम को रेप्लिकेट करें, या ऐसे कैसे सिलेक्शन का क्या रहता है आपका? मैडम, आई जस्ट से समथिंग बिफोर यू से। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके जीवन में कोई परिस्थितियां ना घटी हों।
कहीं ना कहीं उसको दुख हुआ है, कहीं ना कहीं उसको शोक हुआ है, कहीं ना कहीं उसको उल्लास हुआ है, प्रत्येक के जीवन में। क्या मैं इनफैक्ट शुरुआत यही कह के करना चाह रहा था। सर ने एकदम कहा, सबके जीवन में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ पे गम भी है, संघर्ष है वहाँ पे जीत भी है। तो कंटेस्टेंट हर कोई ऐसा सुन के नहीं लाता कि ये इसकी कहानी दुख भरी है तो इसको लेके आते हैं। बहुत इलेबोरेट प्रोसेस सब लोग फॉलो करते हैं। उसके बारे में आशीष और रजनी ज़्यादा बता पाएंगे। बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति का एक बहुत ही रिगरस ऑडिटेड प्रोसेस होता है जिसके द्वारा यहाँ पर लोग आते हैं। पहले वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या फ़ोन या जो भी वेरियस मीडियम्स हैं उसके द्वारा वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एक रैंडमाइजर के द्वारा कुछ एक लोग विच इज़ डिवाइडेड अमंग्स कास्ट एंड योर एज, जेंडर एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद से उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के बाद में वो यहाँ तक पहुँचते हैं। उस इंटरव्यू के बीच में 2 लेवल ऑफ जनरल नॉलेज टेस्टिंग होती है। एक रिटन पेपर होता है जहाँ पर जैसे IAS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वैसे उनका एक पहले वो एक जवाब दे के पहुँचते हैं तो पहला लेवल का फिल्टर वो रहा। फिर वो जब ऑडिशन सेंटर पे आते हैं तो उनका इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार होने के पहले उनको एक रिटन 20 क्वेश्चन का पेपर देना पड़ता है। जैसे सारे एग्जाम होते हैं क्लासरूम्स में बैठ के इन्विजिलेटर के द्वारा वो होता है। उसके बाद में उसका रिजल्ट, क्योंकि वो ऑप्टिकल रीडर के द्वारा हम उसको बता देते हैं, हमारे पास उनका रिजल्ट रहता है। फिर उनका साक्षात्कार होता है और उसके बाद में वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसमें मल्टीपल फिल्टर्स हैं जिसके द्वारा वो मतलब उनका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक रही बात जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इस देश में मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है उनका एक स्ट्रगल है, उनके एक किसी न किसी रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो उसमें कुछ थोड़ी हो सकती है, लेकिन सारे ऐसे होते हैं आई डिसएग्री होता है। लेकिन बहुत सारे हर विभिन्न उम्र के जेंडर के एज के लोग आते हैं और देश वैसे कंटेस्टेंट थोड़ा कम देखने मिलते हैं जिनका सॉलिड सेंस ऑफ कि नॉर्मल परिवार में थे, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई हुई और नॉर्मली मतलब नहीं, ये मैं इससे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वो नहीं करते। हो सकता है आपका जैसा जब आप शो देखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग याद रहते होंगे, इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भूल जाते हैं, जैसे आप भूल गई, बट ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा बायस नहीं रहता है इस बारे में। The next question on the right, sir. अमित जी, Can we take the question of the lady, please? Ladies and ladies. अमित जी नमस्ते, मैं पूजा समन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फिल्मों के सेट पे आप एक कलाकार के रूप में हमेशा अपने काम में मशरूफ रहते। कई कलाकारों से सुना कि अमित जी से बात करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो संवादों में बिजी रहते हैं, संवादों को याद करते हैं, एक कोने में जाके बैठते हैं। आमिर खान ने भी ऐसा ही कहा था। जब मैंने ये नोटिस किया कि KBC के सेट पे कई बार जो हॉट सीट पे बैठे कंटेस्टेंट होते हैं वो आपसे काफ़ी इनफॉर्मल हो जाते हैं, बहुत अपनेपन से बात करते हैं। तो क्या ये KBC की स्ट्रेटेजी है और यू मेड देम कंफर्टेबल टू टॉक? समटाइम्स वो आपको अपनी पारिवारिक बातें भी पूछते हैं और आप भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न जाने किसने आपको क्या पट्टी पढ़ा दी। हम तो जैसा वातावरण होता है, वैसा माहौल होता है, वैसा हम रहते हैं। हम आम तौर पर ऐसे ही हैं। अब सेट पे अगर जाएंगे तो अगर हमको संवाद याद नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? तो हम उसको याद करते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बात नहीं करना चाहते। और कंटेस्टेंट को क्या बोलें इसमें, वो अपने आप बहुत अच्छे रहते हैं। उनके साथ बातचीत करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात बोले, आराम से खेले। बहुत से लोग डर जाते हैं यहाँ आकर के, तो कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए प्रश्न में, तो हम उनसे कहते हैं आराम से खेलिए, बस वही कहते रहते हैं हम, और कुछ नहीं। सर, इस बार का जो पंचलाइन है, डटे रहो अरे रहो, कहीं ना कहीं वो महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, थोड़ा कंपैरिजन लगता है क्या आपको? वो इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ से, उस लाइन से? जी, इंस्पायरिंग लाइन तो है, लेकिन ये बाबू जी की कविता नहीं है। ये कविता है द्विवेदी जी की।
वो गलत छपता है और गलत लोग सोचते हैं। है बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छी करता है। और माता जी की कल बर्थ एनिवर्सरी थी, जी। आपने सोशल मीडिया ट्विटर पे शेयर भी किया था, कुछ वो कुछ याद आता है सर? हाँ सर, याद आता है और उसको हम लिखेंगे हमारे ब्लॉग पे जाकर के पढ़ लीजिए। Hello sir, this is Rasika. Rasika from Times of India. It's a question for Amitabh sir. Everybody here and even outside have a lot to learn from you. But is there one particular quality or value that you have inculcated from the contestant, and has it ever helped you when you were low in your life during your case? प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अभी भी इसी वक्त में हम सीख ही रहे हैं। आपने किस तरह हमसे प्रश्न पूछा, आपका व्यवहार कैसा था, ये जो सज्जन थे इन्होंने कैसे प्रश्न पूछा, इधर जो देवी जी बैठी हैं उनसे इन्होंने, ये हम सब के लिए एक पाठ होता है, हम सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम किसी कला का प्रदर्शन करता होता है कैमरा के सामने, तो न जाने कैसे कोई बात याद आ जाती है कि अच्छा उधर हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस महिला ने ऐसे बोला था, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है। तो प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो हम सीख के जाते हैं वो हम जो कंटेस्टेंट हैं उनके जीवन से, किस तरह उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहित किया, या कर्मवीर से वो कितना नेक काम कर रहे हैं, उसी तरह का काम और करना, ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। एंड कंटिन्यूइंग टू इट, कभी-कभी ऐसे होता है कि सामने वाला जो कंटेस्टेंट है उनका जवाब गलत है, बट प्रॉब्ली यू नो द राइट आंसर इवन बिफोर द कंप्यूटर हैज यू नो सेड दैट इट्स राइट और जी। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं तो हमको लगता है ये आंसर था, तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली फेसिंग इट? इसीलिए तो उन्होंने मुझे चुना एंकर कि हम बताते नहीं हैं। सर आई एम अमित फ्रॉम पंजाब बेसिकली, और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो बदलाव लाए हैं, आप ये हर बार नए बदलाव लाते हैं, काबिल तारीफ है, बट क्वेश्चन ये है सर, इससे पहले अभी क्या कहा आपने, सुना ही नहीं दिया सर। एक मेरा क्वेश्चन नहीं है कि मैडम कैमरा ठीक से पकड़िए उनके सामने। हाँ अब बोलिए। मंदिर सर से मेरा क्वेश्चन ये है, आपने शाहरुख खान को लाया, लेकिन सर आप ये मानते हैं कि अमित सर के बिना ये सक्सेस नहीं हो सकता, कौन बनेगा करोड़पति, क्या आप सर ये मानते हैं? सवाल नहीं समझ में आया। हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, शाहरुख ने किया था, और जितने अलग अलग भाषाओं में होता है उसमें हम कहाँ हैं? बंगाल में सौरव गांगुली थे, अभी महाराष्ट्र में नागराज मंजुले हैं, और केरल में कन्नड़ में, तमिल में, सब अलग अलग लोगों ने किया है। अमित जी, यहाँ जी सर। जब कर्मवीर आते हैं, देश के लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, करोड़ों लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, जब कर्मवीर आते हैं और से आप उनसे कितनी प्रेरणा पाते हैं? सर ये गलत बात है कि लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो जितने भी कर्मवीर आते हैं ना, उनसे हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं। अभी हमने आपको कई किस्से बताए, और कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कोई एक संस्था शुरू की हुई है जहाँ पर वो गरीबों को की देख रेख कर रहे हैं, तो हम उनको व्यक्तिगत तौर पर मिल करके उनसे संपर्क करते हैं और अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है चैरिटेबल वो करते हैं। हॉट सीट पे बैठने के लिए जो लोग आते हैं बहुत से डर जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डरते हैं? ऐसा कुछ है? वही सीट, इससे भी हमको बहुत डर लगता है। Amit sir, hi, Sana here in Express again. Sir, you took a big risk when you did Youth. It was a time when no Bollywood actor was doing television fiction. And what is your take right now? There's a series, web series, boom of digital medium. Are you interested in trying out other mediums also? हाँ, कभी भी आप किसी से मिलें और बोलें, उनको बोल दीजिएगा हम इंटरेस्टेड हैं, करना चाहेंगे हम। यार बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ बन रही हैं, और बहुत सुंदर वेब सीरीज़ बन रही हैं, देश में भी विदेश में भी। तो कोई हमसे बात करेगा तो हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रचार कर दीजिएगा मैडम। आखिरी 3 सवालों का वक्त है।
how do you guys figure out who should feature in Karamveer episodes? How do you finalize on those people? Sorry, can you come on? How do you figure out who should feature in Karamveer episodes? How do you figure out who other person? Well, there is an entire list of things that, there is an entire research team that's there. They go through the background check and the kind of work that they have done. That creative team is after that. As Sir was saying, there is a 250 plus people who, ensure that everything is integrated. We try, of course, we can go wrong, but so far everything is been fine. There is a massive research that goes to it. And fortunately, this country has, although they have not come to limelight, but the country has so many such Karamveers to offer that, so far it's not, we've not fallen short of finding them. It's such a complicated show that a lot of people are unable to understand. But if you were to spend a day from the early hours right till the late night, you will find out how complicated this show is. Right from the technology, to the working, to the management. And on an average, I think our show is about an hour, 15 minutes or 20 minutes. And the efficiency of the show is such that we actually finish the recording within 2 hours' time. That just shows how perfectly managed this show is. And all credit to Sony and their management team. So I keep saying that. Without them, it's not possible to coordinate everything. Well, you're most welcome any day. Yeah, I do. I do remember many interesting cases. I can't talk about what has happened in the past few days, but I was very disappointed. Somebody was playing really well and then didn't take a lifeline and lost a lot of money. So I feel very bad for him. I have a lot of admiration for young women who defy their parents, defy their being stopped from being educated and still come and play here and make a lot of money. There's a lot of admiration, and I narrate those stories many times publicly and in places where I go. I work for Beti Bachao, Beti Padhao, and I keep quoting these instances where young girls are stopped. गांव से आती हैं और गांव वाले कहते हैं इसको केवल 7वीं या 8वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद इसको चौका वौका करने को सिखाओ, इसके ऊपर ज़्यादा पैसे ज़ाया मत करो, ऐसे बोलते हैं लोग. सर मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ, and I oppose that. They say, why are you wasting money by educating this girl beyond the 8th standard? That's a lot of rubbish. But there are women who actually defy their parents, get thrown out of their home, get thrown out of the homes of their grandparents, but still work on their own and come and win 25 lakh rupees here. They are admirable girls. And I ask them, what are you going to do with this check? They say, I'm going to take this check and slap it on my father's face and say, even a daughter is worth in being in the family. So these are the kind of stories that you get inspired by. सर जी यहाँ पे आरती गुप्ता एबीपी न्यूज़ से सर आपसे और अमित सिंह सर से पूछना चाहेंगे 9 बजे का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बम्बुओं ने वो स्लॉट ओवरटेक कर रखा है. मतलब आप अगर राइवलरी चैनल पे देखें तो कुमकुम भाग्य एंड सब जगह पे बम्बुओं की कहानी चलती है, तो उस पर केबीसी आना तो बहुएं और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना लेती है कि अब केबीसी और उनकी मतलब राइटर जो है और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बहुएं आप कैसे केबीसी को टक्कर देंगी. तो इस पर सर अमित सर आप क्या कहेंगे कि बहुओं को कैसे टक्कर देगा है, इस पर आपकी क्या राय है? एंड सर आप टीआरपी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो मेन एस्पेक्ट होता है एक शो के लिए भी. बहू क्या है? सर बहुएं, टीवी की बहुएं, सीरियल की सारी बहुएं. What is it? That's a show called Bahu. सर सीरियल की बहुएं सारी जो छाई हुई रहती हैं कि ओके. मुझे मालूम नहीं कि कौन सा शो है वो. सर 9 बजे के शॉट में जैसे कुमकुम भाग्य हो गया, कहाँ तुम सारी बहुएं छाई हुई रहती हैं एंड उस पर आप एंट्री ले लेते तो बहुएं हो जाती हैं अरे बच्चन सी आ गए, अब शो की कहानी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. तो आपके आने से और मेहनत डबल हो जाती है सारे राइटर्स की
कहानी लिखना हम तो वही करेंगे जो हमको चैनल बुक कहेगा करने को। फिर सर आप क्या मतलब तैयारी है कि आपको भी पता है कि टीआरपी का उलटफेर हो जाता है कि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं टीआरपी क्या होता है हमको सब नहीं मालूम। हम अपना काम करके चले जाते हैं। हाँ जी, ये सब फिल्में हैं। हाँ, देख लीजिएगा, उसमें हम कलाकार हैं और क्या है, वो आप उनसे पूछिएगा प्रोड्यूसर से, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। केबीसी का एक लास्ट सवाल, वो डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आप। केबीसी बोलो, स्कूटर बज गया। वक्त हो चुका। 19 अगस्त को हमें प्लीज मिलिएगा। I think that was just a random thought to promote something or promote an association. But yeah, if they agree to that, as I said, he can't come as a contestant. That's the rule of Sony. We can't break that. But if it is to promote a cause and if it is to promote something that is not connected with KBC, then yes, most welcome. Thank you so much. May I request our dignitaries please pose for a photo op with